So good evening, all of you. Good evening, Good sir. evening, sir. Okay. So I have seen that only few students has joined the CSS doubt class. What is the reason? Why other people did not join the class? तब मेरी दूसरी क्लास थी इस कारण मैं नहीं अटेंड कर पाई. Okay. So it is very difficult to that to give providing to you people the class on demand, because it is not easy to providing a one individual class. We are getting the faculty very difficult ways. So whenever the class should be there, you should be available on that. You should utilize that. Otherwise, it will be very difficult to reach that position, whatever the dream you have. सर मेरा Means ऑफिस था सर, इसलिए मैं नहीं कर पाया. Arun, tell me. सर मेरा ऑफिस था सर, 11 to 12 थी ना क्लास सर, तो मैं ऑफिस में था सर. Okay, okay. See, I think is that important thing is that if it is genuinely reason is genuine, it's acceptable always in every cases. Okay, if you are genuine, but if you are not genuine and you are giving the excuse, actually you are giving the excuse for yourself, not others. Remember this thing. So always remember this thing, otherwise not useful to learning the course like this. Otherwise go and learn and struggle in the market. I'm telling you, you people are very lucky that you are doing the course in very low fee, and because we are in initial stage. As you know that next batch is starting 25,000 and next batch is starting 45,000. Do you know or not? Do you have idea about or not? No, sir. Yes sir, yes sir. Little bit you have idea about this thing. So new batch is then 25K. Next batch is 45K. Same teach whatever we are providing to you people. So you are so lucky that. And again, I'm telling you, if you are thinking that, sir, whatever we are doing here, there are so many recorded courses, our best course. I'm again telling you, there are so many best and optimized courses are available. But still, this interaction is important. The time of 1 hour, whatever I'm giving to you, it is important. Because other places, I will record the same thing, I will sell it, everything. So I can say, we can give you 100 rupees. What is the problem? Because 100 into 100 students will watch it. But my 1 hour giving you to 1 hour and discussing and learning, talking, you are learning in between many things. So what I'm thinking that this name, where is the names, all people. So it is very serious issue to really you want to get the job, 6 lakh, not possible. If you are, this is a behavior. This is etiquettes. This is called the company etiquettes. If you really genuine reason, medical issues or something, which is everywhere in the company, offices, home, colleges, everyone have some genuine reason. Except them, I'm telling you, though are not taking serious, it's a waste of time, waste of things. Very difficult. I cannot say that you will not get the success, but once you will wake up, then only it's success. If still you are sleeping, then not useful on that. Okay. Again, I'm telling you, those who are not attended, again, many students not writing the test courses, test. How you came here to get the seriousness, because you passed from the colleges, you did not get something. See, there's a 2 category of students are there. Here, some students want to learn the skills, and based on their learning, still they want to, that skill they want to convert in the job. Yes, yeah, no, everyone, most of them. Yes, sir. Do you think that in this way, in this non-seriousness way, you will able to get it? I gave you the guarantee to you all people that if you do all the courses, all the content, all the tests, all the assignments, all the projects, you will get the job. But you are getting failed. And again, I'm telling you, I'm not telling 100%, because 100% achievement is not possible to anyone. So I'm going to 80 to 90%. If you are confident on that content, on the quizzes, on the test, on the doubt classes, on your project, you will get the success. 20% relaxation is still there, but I see that you are not able to, only few students are able to reach that 80%+. So it's very important, my dear student. I'm putting my effort and heart to you people to get it something do in this course. So in this way, it is like waste of time and coming and going. Not that you have to find out the things. Find out if you are doing job, if you are doing the college, if you are working woman, so many categories are there. It's okay. This is a part. So what will happen? You have to generally say that, so sir, I am busy in college, I am busy in home, I am housewife, or I am working. So what will happen? Nothing will happen.
See, there is everything have a solution. That's why I'm not telling you that you will not get the success. What will happen? It will take more time. See, we have designed this course for 6 months with the condition taken that you will get the 5 to 6 hours per hours. If you are not able to give the 5 to 6 hours, you are able to give only 3 to 4 hours. So what will happen? Solution: this course will extend to 6 to 8 months. If you are giving 2 hours per day, 8 to 12 months, you will get success. This is true, but time will stretch. So in same batch, then you will tell that, sir, you told that in 6 months I'll be ready. But did you remember these things? No. So this course is made such a way that if you are able to get a 5 to 6 hour average 5 to 6 hours, you will get it, you will complete everything, you will able to get the success. But here what is happening? You are giving 2 hour, 3 hour absent and these things, so it will stretch it. So I'm sure I'm telling you, out of the 25 students, 5 to 10 students will able to complete in 6 months, and they will have offer letter into 6 to 8 months. Surely. And 20 students also can get the offer letter within the 20 within the 6 to 8 months. But you just, that's why I did not write anything. I said just do the self introspect. If it is like so much easy, whatever I am doing, whatever you are doing, the whole world will do the same thing. समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर ये अगर इतना इजी होता लाइफ, तो क्या होता? पूरा इंडिया मैराथन एकेडमी. यस सर, अगर घर पे आने के बाद सिर्फ 1 या 1.5 घंटा मिले तो फिर सर क्या करें? 1 या 1.5 घंटा एवरेज. देखो 2 घंटा एवरेज तो तुम्हें ऐसे हर हाल में देना पड़ेगा. सर रात को ट्राई करते हैं हम कि प्रैक्टिस कर लें. तुम्हें अगर तरुण, तुम्हें अगर टाइम का इश्यू है ना, एक बार मुझसे बात करो. आई विल गिव यू द टाइम लाइन प्लान एंड डिस्कशन, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे. जैसे कि तुम्हारा अगर वर्किंग है ना, आई विल टेल यू, डोंट वरी. देखो मतलब दुनिया में ना, पता है, टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा कोर्स अवेलेबल है. सो आई डिड इट, आई नो दैट हाउ आई विल गिव यू द टाइम. पर्सनली एक दिन किसी दिन फ्री होकर किसी टाइम में भी आधा घंटा 15 मिनट बात कर सकते हैं मुझसे. मैं आपको दूंगा टाइम मैनेजमेंट कोर्स. ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर. तो वर्स्ट केस में आई एम टेलिंग यू, इफ आई टू गेट इट, वर्स्ट केस में सपोज दैट तुम जॉब कर रहे हो, इट्स वेरी गुड टू यू आर वर्किंग. तो उसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दैट, कि तुम्हारा कोर्स 6 महीने का है तो तुम्हारा 8 महीने 9 महीने में कंप्लीट होगा. यू विल बी रेडी फॉर द 9 मंथ. बट इट्स ओके, एटलीस्ट तुम वर्किंग तो थे ना, एटलीस्ट तुम कुछ तो कर रहे हो ना, डिफिकल्ट नहीं. लेकिन जो फुल्ली फ्री है, जो कुछ नहीं कर रहा है, कॉलेज में जाके बातें कर रहा है, घूम रहा है, कॉलेज जा रहा है, सर कॉलेज था, कॉलेज में क्या होता है? आई एम टेलिंग यू ऑल द स्टूडेंट, दोज हु आर गोइंग द कॉलेज, you are wasting the time. This statement is remarkable. Only you are going to getting the degree, a piece of one paper, nothing else. And it is required. I am telling you, it is required. ये जरूरी है आप लोगों के लिए. लेकिन at the same time वो डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है. तो आपको वहां पे वाइज बनना है. अगर आप वाइज बन जाओगे, वहां पे जाके साथ साथ डिग्री लोगे, लेकिन साथ साथ बैठ के अपने कोर्सेज को पढ़ोगे, और जैसे डिग्री एंड हैंड हाथ में रहेगा और ये स्किल्स रहेगा, जाके मार्केट जॉब लोगे, वो बेटर होगा कि जाके फिर सिर्फ वो मस्ती करने में बेटर होगा. नहीं होगा मस्ती. ठीक, जितने भी जो भी कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हो, जितने भी, मुझे आई कैन गेस इट कि वैसे कॉलेज में कोई भी नहीं पढ़ रहे हो. 12 बज के मेरा डेडलाइन था, 11:59 असाइनमेंट का टाइम था. Okay, I will show you one thing. Let's see that. You will not believe this thing because you people are not read this college now. Let's see that. I'll show you one thing. See the which college I am teaching and what kind of the things happening there. And you people are able to follow this thing. Let's check it. Go here. I'll show you one example of my students. You are able to see my screen, I think so. Those who are working professional, they know this thing. What is the meaning of deadline? What is the meaning of seriousness? See, I'm showing you my mail ID, personal mail ID. Okay, so if you go any colleges, anything, just see, this girl, she submitted the assignment 1 April 12:53 p.m. Not this one. Okay, someone I forgot the name. I cannot show the exact time. I want to show you to you.
11:50 PM. Anyways, what are they did not receive that properly. We write that here, received assignment due date. So what the meaning of due date? Here the question is that if they are not able to submit the proper time also, we cut the marks. This is the college. In that kind of college, they know what is the deadline, what is the importance of the assignment, and all these things. Okay, so please, everyone, I'm telling, this is the first warning, first and last warning, and not warning kind of thing. It's all about that you people have a सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, मतलब आपको अपने से एनालाइज करना है आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप आए हो तो ऐसा नहीं कि मम्मी पापा कॉलेज भेज दिए आ रहे हो, आप अपने अपने मोटिवेशन के लिए आए हो, अपने कुछ करने के लिए हो। वो मैंने शुरू में ही आपको एक चीज बोला था, क्या बोला था, कंसिस्टेंसी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसकी जेन्युइन रीजन है ना, जस्ट पास आउट द जेन्युइन रीजन, नो इशू, इन्फॉर्म द पर्सन, जो कंसर्न पर्सन है ज्योति मैम, जस्ट इन्फॉर्म देम, ओके। एंड इफ इट इज जेन्युइन रीजन इट्स ओके, हेल्थ इशू है, क्या दिक्कत है, जॉब है, बट ऐसे काम कर रहे हो तो मुझे फिर सही नहीं लगेगा, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ा के, फिर लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, तो फिर कॉलेज में ही मैं पढ़ाता ना, कॉलेज में पढ़ाता, जाके कुछ भी पढ़ा दिया, अटेंडेंस दे दिया, मार्क्स दे दिया, बच्चों का एग्जाम हो गया, वो निकल गया, हम निकल गए, बराबर हो गया। तो प्लीज we try to follow it strictly, otherwise don't come to in this way to learning by purpose. This is not a way of good learning. नहीं तो अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेम चीज को कोर्स रिकॉर्डेड करके सेम रिकॉर्डेड कोर्स दे देंगे, आप रिकॉर्डेड कोर्स देख लेना, तो फिर नहीं आएगा मजा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आप लोगों के लिए, कोशिश करो आप लोग क्या करें, अटेंडेंस, ये अटेंड वो डाउट क्लास प्लस, मतलब डाउट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी नहीं मिलती है, इंडस्ट्री के लोग अवेलेबल नहीं है आपके लिए, वो जो सैटरडे संडे आपके लिए नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो अगर वो मिलते हैं तो उससे सीखो। अच्छा, जो लोगों ने अटेंड किया था वो लोगों के कुछ डाउट क्लियर हुए? यस सर, यस सर, क्लियर हुए। क्लियर थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, कितना परसेंट लगा कि हाँ मतलब बेटर था, अच्छा था? 50% सर, 50% सर क्लियर हुआ है ना। तो मतलब वैसे छोटे छोटे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और करते जाओगे, जनरल क्वेश्चन पूछे होगे, ठीक है। यस सर, तो यस सर। ऐसे तो मिस करना बहुत डिफिकल्ट है। ऋतिक, तुमने क्यों नहीं अटेंड किया था ऋतिक? सर मैंने किया था। अच्छा ठीक है, डाउट कुछ क्लियर हुआ? यस सर, बहुत सर। ठीक है, तो उसको मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। यस सर। Nice. तो मैं ऐसे ही लेक्चर दे दिया आप लोगों को, ऐसे मैं लेक्चर देने बैठूंगा तो 2 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ इस तरह की चीजों पे, लेकिन वो सब खाली बोलने की बातें होती है, फॉलो करने वाला करता है, नहीं करने वाला नहीं करता है, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। तो आज से आप लोगों का जो टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होगा, 10-10 क्वेश्चन का 2 टेस्ट होगा, ठीक है। 20 एक क्वेश्चन होता था, अब 2 क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमको सीएसएस ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो जितने भी टेस्ट है सीएसएस के खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे टेस्ट का, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम लोग लगभग पढ़ लिए हैं। ओके सर। तो थोड़ा सा आप लोग को, जिसको भी एक चीज हम लोग बताते हैं, देखो जिसको टाइम का इश्यू है ना, टाइम मैनेजमेंट का, हमसे पर्सनली पूछो, कुछ दिक्कत है कि नहीं सर मैनेज नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, अभी भी कंफ्यूजन है, 2 महीने देने के बाद, इतने अच्छे पढ़ने के बाद, इतने अच्छे से मैं बच्चों जैसा पढ़ा रहा हूँ, लिटरली स्कूल जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आई कैन टीच इन डेप्थ एवरी लेवल, बट स्टिल मैं उस लेवल पढ़ा रहा हूँ, फिर भी कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है, तो यू कैन टॉक मी कि सर 5 मिनट बात करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग, बताइए सर क्या करें। जो भी क्वेश्चन है पूछा करो, इससे क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट स्पेशली मुझसे लिया करो, देखें कैसे नहीं होता है तुम्हें। स्पेशली जो लोग कॉलेज गए हैं ना, वो लोग तो बहुत टाइम दे सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल का तो 8 घंटा उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि उस काम करेगा तो पैसा मिलेगा। जो कॉलेज है ना, वो बता रहा हूँ मैं, बैक बेंचर भी बने रहोगे ना, बहुत सारे बच्चे तुम्हारे क्लास में कॉलेज नहीं आते हैं, कुछ नहीं होता, वो भी पास करते, तुम भी पास करोगे, ठीक है। तो थोड़ा कॉलेज गए के पास तो बहुत टाइम है, जो लोग स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ठीक है। 1-2 रात पढ़ के एग्जाम में 60% आ जाता है, तो ये सब चीज सोचो। यस सर। क्या बोले सर आप हम लोग किस खुद ही टाइम सर फ्री 2 रहते रात पढ़ के 70% ला देते हैं सर। हाँ हाँ, आराम से, मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा अगर ओबीडियंट स्टूडेंट हो तो और भी तुमको 75%, 5% ओबीडियंसी पे मिल जाएगा। टीचर के अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो, अच्छा गुड स्टूडेंट बन के रहो, टीचर से झगड़ा मत करो, टीचर जो पढ़ाए उससे बहस मत करो, 5% ऐसे मिल जाता है। यस सर। और झगड़ा करके क्या फायदा, तुम मुझसे झगड़ा, टीचर से स्टूडेंट क्या करता है ना, टीचर से गुस्सा कर लेता है, अरे भाई टीचर से गुस्सा करके उसकी नौकरी चली जाएगी, उसकी नौकरी रहेगी, तुम डिग्री लेके अब लग चले जाओगे।
लेकिन अपना एटीट्यूड, अपना ईगो में जाओ, टीचर को कुछ नहीं आता है, अरे नहीं आता, वो अपना नौकरी कर रहा है, तुम अपना करके निकलो। तुम कौन होते हो उसको बताने Yes, वाला? yes. अगर तुम बताने लायक हो तो तुम ही उसके पोस्ट पे आ जाओ, तुम ही 7 बच्चे का पढ़ाओ। ये सब छोटे छोटे चीज स्किल्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम टेलिंग यू, इफ यू फॉलो दिस काइंड ऑफ स्किल ना, यू विल रीच वेरी बिग लेवल। एक यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा था, अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी पढ़ा था, अभी 6 महीने इस यूनिवर्सिटी पढ़ाया। अभी मुझे अमेठी के एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, जयपुर में, वहाँ पे 6 महीने के लिए पढ़ाना है मुझे। फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मुझे क्या कहते हैं वो कहाँ है, नोएडा में एक यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ाना थी। इस तरह से मैं एक एक कोर्स पढ़ाता हूँ ऑनलाइन अलग अलग जगह पे। तो एक यूनिवर्सिटी में एक बच्चा बोल दिया, क्या सर आपको पढ़ाना कुछ नहीं आता है, ऐसे बोल दिया। तो मैं बोला अच्छी बात है, तो क्या करें, तुम ही आके पढ़ा दो। तो वो बच्चा का तो कुछ नहीं हुआ, मैंने 6 महीना पढ़ा के निकल गया। तो लॉस किसका हुआ? what he is doing that, ना उसको लॉस हुआ ना इसको, बट unnecessary what is the impression he made it, might be he will get the job in Microsoft, it's okay। क्या मेरा कुछ लॉस हुआ क्या? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, कैसे बोले टीचर को, ये सब छोटा छोटा चीज है। और नॉर्मल कॉलेज में हमेशा याद रखना, कभी टीचर से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, अपना नंबर लो, निकलो, स्किल सीख। तो आप लोग बहुत अच्छी जगह पे आए हो, बहुत अच्छे गाइडेंस मिल रहा है, बहुत अच्छा एक स्किल कर रहे हो। जो लोग कॉलेज गोइंग है ना, मैं बता रहा हूँ, उसके लिए तो गोल्डन टाइम है कि उसके टाइम पे ही सीख रहे हो। जैसे कॉलेज से निकलोगे कुछ मिल जाएगा, समझे? कुछ भी, आप तो 10,000 से भी काम स्टार्ट कर सकते हो, 5 लाख की तो बात अलग की बात है। कॉलेज गोइंग 1-2 महीना 4 महीना इंटर्नशिप भी कर लोगे फ्री में, कोई इशू नहीं है। तो इस लेवल पे आप लोग हो, तो आपके लिए तो, जो लोग जॉब कर उसके तो मजबूरी है कि नहीं, इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, घर चलाना है, मम्मी को भेजना है, फैमिली को भेजना है, रेंट देना, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब चीजें सोचो आप लोग, और फिर थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करो, मोटिवेटेड रहो, ठीक है? मोटिवेशन अगर नहीं आता है तो याद करो कि पापा कैसे मेहनत करते हैं, घर वाले कैसे मेहनत करके पैसे देते हैं, ठीक है? कॉलेज गोइंग वाले के लिए बहुत मोटिवेशन है दुनिया में। तो हम लोग जो है हाँ आज सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर, एग्जाम में कुछ स्क्रॉल बार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो स्क्रॉल बार के बारे में बता देंगे आपको, मतलब सीएसएस डिजाइन। स्क्रॉल बार क्या सीएसएस का था क्या? मतलब डिजाइनिंग का कुछ था कि मतलब स्क्रॉल बार में बॉटम वाला उसका जो पार्ट है उसको कैसे मतलब शेडिंग, पोजीशन का था क्या? नहीं पोजीशन का नहीं था, स्क्रॉल बार में डिजाइनिंग का। एक्स एक्सिस वाला स्क्रॉल बार। पता नहीं यार, याद नहीं। इसलिए बोले ना, ग्रुप में पूछ लिया करो ना। एग्जैक्ट एक्चुअली एडवांस सीएसएस में आई एम नॉट मच कंफर्टेबल ऑन दैट, लिटिल एडवांस सीएसएस, इसलिए मैंने नहीं भी पढ़ाया था। तो अगर ग्रुप में पूछ लिया होगा तो जरूर मैं बता दूंगा, ठीक है ठीक सर, है? पूछ लेंगे। ग्रुप में जैसे पूछोगे ना तो श्योरली आई विल गिव यू द बेटर आंसर टू यू पीपल, ठीक है? पूछ लिया करो डिस्कशन में ऐसे करके एक ठीक है क्वेश्चन, सर, ठीक। या फिर मैं नहीं बता पाऊंगा तो आपका जो फ्रेंड है, डिस्कशन ग्रुप इसीलिए बनाया ही गया है, आपका फ्रेंड है वो बता देगा, ठीक है? Yes, sir. तो एटलीस्ट उसका देखो, कभी होता है क्या, जब पूछते हो जो लोग बताएगा, बताने से ना क्लैरिटी आ जाती है, फिर उसको Yes, अगर वो sir. क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेगा ना तो हमेशा बता देगा, तो वो उससे ये भी फायदा है, ग्रुप डिस्कशन का ये भी फायदा है, Yes, ठीक है? sir. ठीक है। तो आज से आप लोगों का क्या कहते हैं 2 टेस्ट होगा, प्लीज टेस्ट सब लोग दो, जो 25 लोग आप लोग रेगुलर हो प्लीज दो। आई एम टेलिंग यू, आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा, आप लोग बहुत अच्छा करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला कोर्स, ठीक है? स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, तो इसको पढ़ते हैं, इसको फुल कर लेते हैं स्क्रीन को। So today we will study what are the scopes is available in the JavaScript. We have already studied these all things: global scope, block scope, local scope. Only scope chain we don't know. Yes, yeah, no. Yes. Yes, sir. Most of the people, student, know that what is global scope, what is local scope, what is block scope, and scope chain. We will learn that these three things already we know that. So जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कोप क्या होता है, स्कोप क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, जैसे आपने बताया था, ऐसे कुछ ऐसे एक ब्लॉक होता है, इसके अंदर जो चीज लिखा रहता है इसको हम लोग एक स्कोप बोलते हैं। इसका ये स्कोप, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री, एक कंट्री का कितना स्कोप है एंड स्टेट का कितना स्कोप है, चीफ मिनिस्टर का पावर सिर्फ उसी स्टेट में चलेगा, दिस काइंड ऑफ थिंग स्कोप। तो स्कोप डिफाइन कैसे करते हैं? तो सर स्कोप ऐसे डिफाइन करते हैं, मैंने करके भी दिखाया था, आरजी करके थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा, the variable that you declare outside the function is called the global scope। मतलब क्या हुआ, जो वेरिएबल outside the function or outside the block is called the global variable। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मेरा स्क्रीन होपफुली दिख रहा होगा, हाँ? तो इसको हटा देते हैं, और आज हम लोग का क्लास है, कौन सा क्लास है, डे
इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। डे 4 डे 5 कर लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा नया फोल्डर बनाते हैं, डे 5। व्हाट हैपेंड? सर नीचे से बनेगा ना, जेएस क्लास के बगल में। सर नीचे वाले से। हाँ, नए फोल्डर, डे 4 डे 5। अच्छा, आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है ना, वाली बात इंपॉर्टेंट है। जो भी सीख रहे हो आप, पहले से जो लोग जानते होंगे, कितना सिस्टमेटिक चीजें सीख रहे हो, आपको पता है। यस यस सर। मतलब शुरू में लग रहा होगा कितना स्लो चल रहे हैं, लेकिन धीरे 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 आप उस पेस में आ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है। यस सर। सर यही पेज ठीक है सर, इतना ठीक। यस, तो मतलब आप धीरे धीरे करके उस पेस में आ रहे हो और उस तरह से जा रहे हो, तो यही सिस्टमेटिक तरीका होता है किसी चीज को सीखने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो एक छोटा सा स्क्रिप्ट फाइल लेते हैं और यहाँ पे CD डे 5 में चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखो, अगर मैंने लिखा यहाँ पे लिखा, ये ब्लॉक बनाया, अभी मैंने लिखा लेट a इक्वल टू 10, प्लीज समझना इसको अच्छे से, लेट a इक्वल टू 10 और कंसोल डॉट लॉग a को प्रिंट करा दिया। नॉर्मल a प्रिंट हो, a की वैल्यू प्रिंट हो गई 10, लेकिन अब इसी को मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉक में लिख दूंगा, इसी को बोलते हैं ब्लॉक। इसका क्या मतलब हो गया कि इसका एक स्कोप डिफाइन हो गया। अब मैं a को प्रिंट कराऊंगा, देखना क्या बताएगा। नहीं होगा। क्यों एरर बता रहा है? क्योंकि इसका स्कोप, ये जो है ना, इसको बोलते हैं लोकल, इसी को बोलते हैं लोकल वेरिएबल या लोकल स्कोप या लोकल वेरिएबल, और इसको बोलेंगे क्या, ग्लोबल वेरिएबल। यहां मैं लिखूं कुछ, लेट a इक्वल टू 20 और इसको बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल। तो मतलब अगर ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा हुआ है या फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो उसको ग्लोबल स्कोप, तो वो अलग बात है कि लेट का और वेयर का और कांस्टेंट का अलग अलग वैल्यूज होता है। लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप आप लोगों को समझ में आ गया हो? किसी को दिक्कत इसमें, लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप में? किसी No, को? sir. नो सर। ठीक है, नो सर। तो उसी तरह ब्लॉक स्कोप भी समझ, एक स्कोप चेन होता है। तो द वेरिएबल दैट यू डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल, इनसाइड द फंक्शन या इनसाइड द ब्लॉक। ठीक है, एग्जैक्ट सिर्फ फंक्शन नहीं होगा। ES6 provide the let const keyword that allow you to declare the variable block is generally whenever you see the curly bracket is called the block। तो बेसिकली let और const का ब्लॉक स्कोप होता है और वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो कौन सा होता है, ग्लोबल होता है। स्कोप चेन, the way JavaScript resolve the variable by looking its current loop scope is if it cannot be find the variable it goes up to the outer scope which called the scope chain। scope chain क्या होता है थोड़ा खाली देख लो बस। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लिखा, फिर एक ब्लॉक लिखा, फिर एक ब्लॉक लिखा। अब यहाँ एक ब्लॉक लिखने के बाद मैंने क्या किया, एक यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग ए, सपोज दैट ए लिखा, और यहाँ पे ना ए लिखा। अभी जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, इसको हटा देते हैं, तो देखना प्रिंट क्या होगा। तो गेस कर सकता प्रिंट क्या होगा, 10 प्रिंट हुआ। तो कौन सा 10 प्रिंट, ये वाला वैल्यू प्रिंट हुआ। लेकिन मैं अभी यहां से हटा देता हूं, इसको भी कमेंट कर देता हूं। ठीक है, अब वैल्यू कौन सा प्रिंट होगा बताओ तो, 20। तो बेसिकली देखो कैसे 20 प्रिंट हुआ। तो इस वाला ब्लॉक में तो ए है नहीं, ये वाला ब्लॉक में तो ए नहीं है, तो कैसे कहां से प्रिंट किया। तो इसी को, इस वाला ब्लॉक में जब ए नहीं है, ये सर्च क्या कहीं इसके बाहर है क्या, यहाँ पे देखेगा, यहाँ आउटर ब्लॉक, ये आउटर ब्लॉक है। यहाँ भी देखा कुछ भी नहीं है, इस यहाँ पे लेट कुछ भी नहीं है। इससे बाहर देखा, यहाँ भी देखा कुछ भी नहीं है। इससे बाहर देखा तो ए का वैल्यू है तो प्रिंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्कोप चेन। इसको क्या बोलते हैं, स्कोप चेन। समझ में आया स्कोप चेन क्या होता है? जी यस सर। सर। यस किसी को नहीं समझ में आया तो फिर लेकिन अगर सर वाइस वर्सा करेंगे तो क्या वाइस चलेगा? वर्सा मतलब अगर कंसोल, अगर लेट 8 इज इक्वल टू 20 हम इनर ब्लॉक में लिख दें जो ब्लू कलर चलो का ये है। इनर ब्लॉक है, ठीक है, ये इनर ब्लॉक है। यहाँ बोलते हो लेट ए इक्वल टू 20 लिख दिए, यस सर, और कंसोल सॉरी लॉग अगर 30 लिख दिए, ठीक है। हाँ, तो अभी आउटपुट क्या आएगा, तुम ही बताओ क्या आउटपुट अभी आएगा। तो सर 30 आ जाएगा। 30, क्योंकि पहले अपने इनर ब्लॉक में सर्च करेगा, इनर ब्लॉक में नहीं रहेगा तब आउटर ब्लॉक में। देखो अभी एक काम करते हैं, तो ये हम लोग इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं इनर ब्लॉक,
इनर ब्लॉक, ठीक है। इनर ब्लॉक में 30, ये है आउटर ब्लॉक। आउटर में लिख देते हैं लेट ए इक्वल टू 40, ठीक है। ये लिख देते हैं लोकल ब्लॉक, टॉप मोस्ट ब्लॉक, टॉप ब्लॉक, ठीक है। और इसमें लेट ए इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। इसमें लेट, और ये है ग्लोबल स्कोप। तो अब बताओ क्या होगा। मैंने कंसोल यहाँ लिखा, पहला वाला वैल्यू अगर मिल गया तो पहला ही प्रिंट करेगा। तो देखो पहला प्रिंट कर दिया, अभी प्रिंट क्या करेगा, 30 प्रिंट करेगा, ठीक है। मान लो ये वाला वैल्यू नहीं था, नहीं इसको सर, मैंने comment कर मान दिया। लो कंसोल लोग आपने बाहर लिख दिया। कहाँ पे, यहाँ पे, यस सबके सर। बाहर। तो Yes, अब बेसी sir. बात है, गेस करो क्या होगा, सब लोग बताओ गेस करके। सबसे टॉप में जो वैल्यू है जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है वही लेगा ना। 20 आएगा, 20। ठीक है, तो क्या होगा, कंसोल मैंने बाहर लिख दिया, ये तो ब्लॉक के अंदर का स्कोप है, ठीक है। तो मैंने ब्लॉक के अंदर तो गया ही नहीं, सीधे यहाँ गया, जहाँ पे तो जो भी है ये वाला वैल्यू जो भी करेगा, ये वाला फाइनल वैल्यू जो पड़ेगा 20 प्रिंट करेगा। फाइनल वैल्यू का 20 प्रिंट करेगा। क्यों 20 प्रिंट करेगा, क्यों 20 प्रिंट, क्योंकि ये ग्लोबल वैल्यू करेगा, ब्लॉक के अंदर नहीं जा सकता है, ऐसे वाइस वर्सा नहीं जा सकता। मतलब क्या है, ऐसे मैं एरो करके दिखाता हूँ, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, ऐसा नहीं है ये वाला यहाँ वैल्यू है तो इसके अंदर चले जाएगा अपने आप, नहीं। यस सर। ये इसका ब्लॉक का स्कोप ये फिक्स है, इसी के अंदर ही रहेगा ये लोग। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, ये वाला नहीं रहता, तो ये इसकी यहाँ से अंदर से बाहर जाता है इसके अंदर, ये भी नहीं रहता तो कोई बात, तो इसके आ जाता है, ये भी नहीं रहता तो यहाँ जा सकता, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं ये वाला प्रिंट कर इसके अंदर किसी का वैल्यू ले लेगा, इसी को बोलते हैं स्कोप चेन। बेसिकली एक चेन बनाता है, अंदर में एक चेन बनाता है। क्लियर है। तो सर सिर्फ एक ही वैल्यू क्यों प्रिंट हुई है? कौन सा, दो 20 वैल्यू 20 प्रिंट हुई होगी ना ना, सर? नहीं दो वैल्यू प्रिंट होगी ना, देखो रन कराता हूँ, अच्छा, 30 20 ठीक है प्रिंट सर। हुई ना, ओके सर, ओके सर। दो वैल्यू प्रिंट हुआ ना। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, स्कोप चैन है। मतलब ये वाला वैल्यू अगर पहला वाला नहीं रहा यहाँ पे ए, दूसरा वाले में खोजेगा, यहाँ भी नहीं रहा तो तीसरा वाले में खोजेगा, तीसरा वाले ब्लॉक में भी नहीं रहा तो बाहर वाला खोज लेगा। तो कहने का मतलब इस तरह से एग्जाम्पल अगर देख लो, मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया था वो किसी पार्टी का, किसी मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरे इंडिया में है, ठीक है। तो मान लो पहले लोकल में देखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है, तो फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में देखेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो पूरे स्टेट में देखेगा, पूरी स्टेट में नहीं तो कंट्री लेवल पे देखेगा, जस्ट लाइक दैट। यस या नो, ठीक है, क्लियर है सबको, वेरी गुड। सर हाँ बोलो। कॉन्स्ट के साथ भी यही होगा क्या? हाँ वो तो कॉन्स किसी भी कर लो, कोई इशू नहीं है उसकी, लेकिन कॉन्स के साथ अगर वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, कॉन्स में तो पहले तो ये कर ही नहीं सकते, सेम नाम का लिख ही नहीं सकते, है ना। लेकिन लिख सकते हैं, यहाँ पे तो लिख सकते हैं कि ब्लॉक स्कोप है ना, यहाँ पे ठीक है। तो ये तो मतलब ये कॉन्स का मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ स्कोप चेन बताए, ऐसे कॉन्स लिखो इससे लिखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, कॉन्स लिखो या लेट लिखो, इससे क्या मतलब होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब, बेसिकली हम सिखा रहे थे स्कोप चेन क्या होता है बेसिकली। तो लोकल स्कोप सीख गए, ब्लॉक स्कोप सीख गए, ये ब्लॉक स्कोप है, ये जो है ना ब्लॉक स्कोप है, ये लोकल स्कोप है, ये लोकल स्कोप है, इसके इस ए वाला वैल्यू इसी के अंदर काम करेगा, और ये ग्लोबल स्कोप है, और ये ब्लॉक चेन है। तीनों चीज आप लोग को बता दें, किसी को कोई डाउट इसमें बताओ, इस शुभम को डाउट था कुछ? नहीं सर। हो गया, समझ में आया कि नहीं शुभम? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको पढ़ते हैं, कुछ बड़ा चीज नहीं, बहुत छोटा सा चीज है ये। स्कोप डिटरमाइंस, बट इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आप लोगों के इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि लोकल स्कोप, ब्लॉक स्कोप और ब्लॉक स्कोप चेन क्या होता है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन लेवल पे उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, हम लोग तभी से पढ़ ही रहे हैं बार बार। ये जितना भी चीज हम पढ़ाए ना, मैंने जो पढ़ाया डिस्कस किया, जो मैं डिस्कस किया इंटरव्यू पर्पज से बहुत काम आएगा, जैसे मैं बताता हूँ वैसे इंटरव्यू बता दें, वो खुश हो जाएगा, भाई इतना अच्छा जानता है बंदा, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। Scope determines the visibility of the accessibility of the variable, visibility and accessibility of the variable। क्या बताता है इसको, इसकी विजिबिलिटी कहां तक है, इसका एक्सेसिबिलिटी कहां तक, कौन किसको, इसकी विजिबिलिटी इस ए वाले की कौन कौन इसको यूज कर सकता है और कौन कौन इसको देख सकता है, वही बताता है इसको। यस या नो, सब लोग एग्री करते हैं उस पे ना भाई, बोलो। यस सर। है ना। यस सर। जावास्क्रिप्ट हैज 3 स्कोप, कौन कौन सा स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, लोकल स्कोप है, और कौन सा है, ब्लॉक स्कोप है। क्लियर है। यस। When the JavaScript engine executes the script, it creates the global education context।
अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। जब जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट, जैसे कि मान लो कंट्रोल शिफ्ट आई करके हम यहाँ पे जाते हैं, तो अभी मैं अपना इंडेक्स कंट्रोल शिफ्ट आई सी को कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट जो है इंजन करता है, कंसोल में जाके यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हेलो हेलो लिखते हैं। तो जब जावास्क्रिप्ट ये जो रन कराए ना ऐसे करके, तो ये जावास्क्रिप्ट इंजन है, तो एक ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। वो क्या होता है जानो, इट्स लिटिल बिट एडवांस बट इट्स ओके, लेट्स सी, थोड़ा बहुत समझाते हैं, जानना जरूरी है। इट क्रिएट्स द ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। वो क्या होता है देखते हैं। It also assists the variable that you declare outside the function to global execution context. ये जो है, जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बाहर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वो उसको भी असिस्ट करता है कैसे काम करना चाहिए। These वेरिएबल आर इन द ग्लोबल स्कोप, और ये सब वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में होता है। इट ऑल्सो नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को ही हम लोग ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, लोकल वेरिएबल को ही लोकल स्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि जब हम कोई प्रोग्राम में, जब कोई भी प्रोग्राम में वेयर मैसेज, ऐसे हम कोई प्रोग्राम लिखे, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम लिखे, यहाँ से लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 16 तक, ये कैसे काम कैसे कर रहा है, मतलब इसका आउटपुट कैसे, इतना चीज लाइन में लिखे, डायरेक्ट आउटपुट 30, 20 हुआ, कैसे हुआ। ये चीज को देखने के लिए हम लोग ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट सीखेंगे कि एजुकेशन, ये एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है कोड का, एक प्रोसेस कैसे है कोड का, स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है, लाइन 1 कैसे हो रहा है, लाइन 2 काम कैसे कर रहा है, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 6, लाइन 7 कैसे काम कर रहा है। ये मतलब सीखेंगे आज इसमें, इस कोड में थोड़ा सा, जो कि एडवांस है, जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, टेंशन नहीं इसके लिए। तो ये तो आप लोगों को पता है कि वेयर मैसेज इक्वल टू हाई का क्या मतलब हुआ, कि मैसेज नाम का एक बॉक्स बना हुआ है, मैसेज नाम का मेमोरी में एक इस जगह बना हुआ है जिसमें कि हाई सेव किया हुआ है और टाइप उसका वेयर है, यस या नो। ठीक है, और द वेरिएबल मैसेज इज अ ग्लोबल स्कोप, इट कैन बी एक्सेसिबल एवरीवेयर इन द स्क्रिप्ट। और इसका ये मतलब है, ये वेयर टाइप है, इसका जो स्कोप है अभी करंट टाइम में एवरीवेयर है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। मैसेज बुला के प्रोग्राम में कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसको देख सकता है। क्लियर है ये, इसी को बोलते हैं ग्लोबल स्क्रिप्ट। लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं इन द बेटर तरीके से। जब हम कोई प्रोग्राम में, whenever we write in any program this where message equal to high, तो कैसे कंप्यूटर इंजन जो है, कंप्यूटर इंजन नहीं, जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे काम करता है, आपका ब्राउजर कैसे काम करता है। मतलब यहाँ पे ब्राउजर का एग्जांपल लिया है कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर कैसे काम कर रहा है। देखो, आप लोग को बताए थे कि जब हम ये लिखते हैं तो हर ब्राउजर का, अभी यहाँ पे मैंने ब्राउजर लिया है, जैसे यहाँ पे मैंने खोला था इसको, एक विंडो होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट विंडो बोलते हैं, जो आप लोग डॉम पढ़ेंगे, आगे चल के डॉम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विंडो होता है, तो उस विंडो के अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो होता है, मतलब इसके अंदर क्या चीज है उसको हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो है। यहाँ तक समझ में आया, एक विंडो है, ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना, एक विंडो है, इसको एज ए विंडो पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जब पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा विंडो क्या होता है। तो समझ लो अभी एक विंडो है, और विंडो में दिस डॉट विंडो क्रिएट करते हैं, दिस डो विंडो बुलाते हैं, और उस विंडो के अंदर मैसेज नाम का वेरिएबल से हाई दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो ग्लोबली ये मैसेज रखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लोकल स्कोप देखो, द वेरिएबल दैट यू डिक्लेयर द इनसाइड द फंक्शन और लोकल टू द फंक्शन इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल और लोकल स्कोप। ठीक है, जो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं या फिर इनसाइड द ब्लॉक लिखते हैं, उसको हम लोग लोकल फंक्शन, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ वेयर मैसेज इक्वल टू हाई, ये ग्लोबल है या लोकल है, बताओ तो। ग्लोबल। अब यहाँ मैंने फंक्शन लिखा से नाम का एक फंक्शन बनाया। कैसे हम पहचाने ये फंक्शन है, क्योंकि ये पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। से नाम का एक और फंक्शन कीवर्ड भी लगा हुआ है। से नाम का फंक्शन बनाया हुआ, उसके अंदर एक ब्लॉक बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें लिखा वेयर मैसेज इक्वल टू हेलो, कंसोल डॉट लॉग मैसेज लिखेगा। तो क्या प्रिंट करेगा बताओ तो, यहाँ पे हेलो जब हेलो, टोटल आउटपुट क्या आएगा, पहले हेलो उसके बाद हाई आएगा। पहले हेलो क्यों आया, क्योंकि लोकली है, लोकल प्रिंट कर दिया, ये वाला ग्लोबली, ग्लोबल प्रिंट। लेकिन मशीन में कैसे हो रहा होगा हम तो समझ गए, लेकिन अगर कंप्यूटर में देखा जाए, जब हम ब्राउजर में ये कोड लिखेंगे तो ब्राउजर में कैसे होता होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, समझो इसको। When JavaScript engine execute a say function, जब JavaScript engine जो है, जब हम कोड को रन कराते हैं, say function execute करते हैं, it creates the function execution context।
तो वो क्या करता है, फंक्शन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। दो चीज क्रिएट करता है, एक ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, एक फंक्शन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। मतलब ये क्या है भाई, कॉन्टेक्स्ट क्या है सर, ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा कुछ है कि समझ लो ऐसे कि दो अलग से स्टेप क्रिएट करता है, दो अलग प्रोसेस क्रिएट करता है, एक प्रोसेस दो प्रोसेस, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये एक प्रोसेस है, एक दूसरा प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस में क्या है, द वेरिएबल मैसेज डिक्लेयर्ड इन द से फंक्शन इज बाउंड टू द फंक्शन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड फंक्शन नॉट ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर किया गया ना, वो सिर्फ इसी के अंदर काम करेगा और कहीं काम नहीं करेगा, और ये सब जगह काम करेगा। तो जब भी हम इस तरह के कोड लिखते हैं तो दो एजुकेशन कॉन्टेक्ट, बाय डिफॉल्ट ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्ट, तो पूरा जब ये प्रोग्राम लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्ट क्रिएट करेगा। इसको बोले ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको बोलेंगे ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको बोलेंगे फंक्शन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, फंक्शन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ऐसे फंक्शन। तो देखो ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट के लिए हुआ, ये वाला लाइन सबको समझ में आ गया। तो ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, एक विंडो होता है, विंडो क्रिएट हो गया, सही है। उसके अंदर दिस डॉट विंडो को बुला लेते हैं, क्लियर है। उसके अंदर एक मैसेज हुआ है हाई, क्लियर कर लिया। जैसे ही हाई क्रिएट हुआ उसके बाद एक फंक्शन आया से, यहाँ पे से जैसे ही ये फंक्शन आया तो एक फंक्शन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, ये वाला कंप्लीट लाइन, ठीक है, ये लाइन क्रिएट। और जब फंक्शन ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ तो उसके अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, आर्गुमेंट, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट है क्या। उसके बाद फिर विंडो बुलाते हैं और उस विंडो के अंदर फिर लिखते हैं हेलो, ये प्रोसेस होता है। अब जो है ये हेलो प्रिंट जब कंप्लीट कर लेगा, ये वाला काम कंप्लीट कर लेगा, ये वाला काम कंप्लीट करेगा, फिर ये जाएगा बैक टू यहाँ पे और ये फिर जो है हाई को प्रिंट करेगा, ठीक है। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं लोकल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसी तरह स्कोप एक हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्कोप तो चेक पढ़ते हैं। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलो बोलो। सर तो पहले प्रिंट जो करेगा वो फंक्शन वाले को करेगा, इसके बाद ग्लोबल लेगा। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर सपोज रहा तो इनर वाले फंक्शन को करेगा, फिर आउटर Yes. फंक्शन, इसके अब बाद जैसे मान ग्लोबल लो को इसी करेगा। के अंदर एक फंक्शन और बनाते हैं, चलो यहाँ पे हम लोग कोड करके दिखा देते हैं आप लोगों को। इसको हटा देते हैं, चलो। तो मान लो इसी को हम लोग एक फंक्शन लिख देते हैं अभी तुरंत तुरंत इसको हटाते हैं और इसको फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, FUNC फंक्शन से, ठीक है। एक फंक्शन लिखे तो इसके अंदर देखो एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन लिखते हैं फंक्शन से। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट a इक्वल टू, ऐसा करते हैं सीक्वेंस। अच्छा चलो 50 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 50, ठीक है। CONST कॉन्स्ट, नहीं नहीं तो है ही ना, फंक्शन के अंदर ये है ना, ठीक है। एक फंक्शन और लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं FUNCPIN फंक्शन, ठीक है, से 1। चलो दो फंक्शन लिखे हैं, एक तो फंक्शन लिखे से नाम का फंक्शन बना है, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, देखने जगह कम लगेगा, इसको हटा देते हैं। सर शिफ्ट प्लस आर्ट प्लस एफ कर दीजिए तो क्राइटेरिया उसको सब बैलेंस कर देगा। अच्छा वो डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ना, यस सर। ठीक है। तो ये ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा दिखेगा, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए, यहाँ फंक्शन से 1 कर दिए, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, इसको समझना, ठीक है। तो और भी थोड़ा समझा देते हैं आपको। तो लाइन नंबर 1 देखो, लाइन नंबर 1 जैसे ही ये इंजन में ये प्रोग्राम जाएगा कंप्लीट या कंपाइल करने के लिए, तो क्या बनाएगा, एक ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्ट बना, ऐसे बॉक्स बनेगा, ऐसे बॉक्स बनेगा, और इस बॉक्स का नाम होगा ग्लोबल एजुकेशन, पेन कहाँ गया, ग्लोबल मेरा तो पेन भाग ही नहीं रहा, क्या बात, चलो कोई नहीं। तो ये ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट हो गया इसको, ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो लाइन नंबर 1 में क्या किया है, जैसे ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्ट बनता है, क्या बनता है, एक विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। जैसे विंडो क्रिएट हुआ तो उसके अंदर विंडो में क्या है, पहला लाइन क्या है, एक वेरिएबल बना दो a इक्वल टू 20, ठीक है। जैसे ही दूसरा लाइन क्रिएट, एक फंक्शन क्रिएट हो गया, एक फंक्शन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया,
ठीक है। इस फंक्शन ऑफ ड्यूरेशन जैसे क्रिएट हुआ फिर एक बॉक्स बनाएगा सेकंड के, इस एक बॉक्स बनाएगा सेकंड के। अब इसके अंदर जाएगा, देखा a इक्वल टू 10 है, कर दिया a इक्वल टू 10। मेरा पेन काम नहीं कर रहा इसलिए माउस से कर रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, था समझो इसी को। उसके बाद जैसे ही 10 पे गया फिर एक फंक्शन क्रिएट किया, तो फंक्शन मतलब फिर fe हो गया, और इसी के अंदर एक बॉक्स और क्रिएट करे, इसी के अंदर होगा ये पूरा, ये अंदर होगा ये, है ना, ये पूरा अंदर होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक बॉक्स क्रिएट होगा, फिर इस बॉक्स के अंदर फिर a इक्वल टू 40 कर देगा, a इक्वल टू 40 कर देगा। उसी के अंदर फिर से इनर ब्लॉक होगा, इनर ब्लॉक कोई दिक्कत नहीं, इनर ब्लॉक में कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं, a इक्वल टू 30 कर देगा यहाँ पे। अब 30 कर देगा, यहाँ पे देखिएगा कंसोल डॉट लॉग ए है, कंसोल डॉट लॉग ए है, तो ये पहला वाला 30 को वो प्रिंट कर लेगा, ठीक है, 30 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ गया कुछ नहीं, यहाँ गया कुछ नहीं, यहाँ गया, तो अब यहाँ पे आएगा, ये कंप्लीट हो गया, ये कोड कंप्लीट हो गया। अब देखा कंसोल डॉट लॉग ए बाहर है, तो बाहर वाला कंसोल डॉट ए कौन सा प्रिंट करेगा, 20, तो ये 20 प्रिंट कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, बोलो। सर अगर फंक्शन को कॉल करें, मतलब से को कॉल करेंगे तब? से को तो कॉल कर ही रहे, मतलब हमने देखा नहीं एक्चुअली, जब से को कॉल करेंगे तभी ये सब चीज होगा, से को तो कॉल करना ही करना है, बिना कॉल के तो नहीं होगा ना, बिना कॉल के तो कुछ होगा क्या, बताओ तो बना। अच्छा प्रिंट करेंगे तो क्या होगा ये बताओ। सर 10 आएगा फिर, मतलब अभी तो सिर्फ 20 आएगा ना, अगर कॉल नहीं लाइन करेंगे, नंबर 1 को लेगा सिर्फ। है ना, कॉल तो कर दे, जो भी बताए ना गलती कर दे, कॉल आपको नहीं बताए, ये कॉल करेंगे तभी प्रिंट 30 करेगा। सर ये से 1 का जो है आपका आउटर ब्लॉक वाला, इसकी कलर ग्रे आउट क्यों हो रही है, लाइक फंक्शन कौन सा? दूसरा इस वजह से हो रहा है क्या, लाइक वो अलग अलग जगह अलग अलग फंक्शन है इसलिए अलग अलग हो रहा, कलर हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कॉल अलग से करना पड़ेगा दोनों को? नहीं, एक ही को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर सब कुछ हो जाएगा। नेस्टेड ओके सर। नहीं सॉरी, इसको कॉल करना पड़ेगा ना, यहाँ पे अगर कॉल नहीं करेंगे तो से 1, ठीक है, अब होगा ये चीज, ठीक है। अगर मैं देखो ये भी सीख लो चलो, अभी मैंने सिर्फ एक फंक्शन को कॉल किया, से फंक्शन को कॉल किया, से फंक्शन को कॉल किया तो क्या हुआ, बोला कॉन्स्ट में ए को डाल दो और एक फंक्शन बना दो, इसको कॉल ही नहीं किया, इसलिए आउटपुट क्या आएगा बताओ मुझे, बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका। कॉल इसको नहीं किया 10 आपने, एनी आउटपुट से 20 10 क्यों 20 आएगा सर, 20 आएगा। 20 अगर तो 30 किसी नंबर एक लाइन फंक्शन को 10 ए का वैल्यू 10 कर दिया उसके अंदर, और एक फंक्शन बनाया, सिर्फ कॉल नहीं किया। लेकिन जब इसके अंदर मैंने एक कॉल कर दिया, इसी के अंदर से 1 लिख दिया, से 1 करके अब इसको मैं कॉल करूंगा, दोनों प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि बोला कि पहले तो बोला से को बुलाओ, से के अंदर गया, बोला ए को 10 कर दो, बोला से 1 को बुलाओ, और से 1 में जो रखा हुआ, से 1 में देखा कि ए को प्रिंट करने बोला तो 30 प्रिंट कर दिया, और ये कंप्लीट हो गया, फिर बोल रहा है ए को प्रिंट करो, ये 20 प्रिंट कर दे। तो इसको समझो, इसको फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले ही कॉल कर सकते हैं। कहाँ से फंक्शन डिक्लेयर करने से, कौन सा सर से 1 को पहले कॉल कर रहे हैं ना, कौन सा, ये हाँ ये वाली, हाँ ये होस्टिंग है ना, अगर ये होस्टिंग फॉलो करते हैं ना, फंक्शन होस्टिंग करता है तो वो भी कर सकते हैं। तुम चाहते हो कि नहीं फंक्शन डिक्लेयर पहले यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग है, यही सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एरर बताता है, बोले फंक्शन डिक्लेयर नहीं किए फिर भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे करेगा, यहाँ पे देखो अभी हमने अभी बाद में डिक्लेयर किया फिर भी वही आउटपुट आएगा। तो हम फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले हम फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग होस्टिंग। होस्टिंग क्या बोलते हैं, बिफोर इनिशियलाइजिंग वी कैन कॉल इट, यही होता है ना होस्टिंग। यस सर, यस। यस सर, यहाँ पे भी कर दो या बाद में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके समझ में आ रहा है? सर होस्टिंग का यूज फंक्शन हमारे ख्याल से ही होता है। बेसिकली होस्टिंग का यूज फंक्शन में ही होता है, ठीक है। Okay. तो स्कोप चेन मैंने बताया, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पे देखो, ये मैंने हाई लिखा और फंक्शन से कंसोल आई। अब जैसे इसको प्रिंट करें आउटपुट क्या आएगा, हाय कैसे हाई आ गया, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल हाई है, तो ये कहाँ से, इसी को बोलते हैं स्कोप चेन। इसके स्कोप पे नहीं है लेकिन इसके चेन में है बाहर ना, देखा उसने, बाहर चेक किया। चेन में ना, इसीलिए बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं क्या, स्कोप चेन, ठीक है। In this example, we reference the variable message inside the say function. Behind the scene, JavaScript perform the following: look up the variable message in the current context, function execution context, say function. It cannot find the variable message inside the current context. तो देखो इसी को बोलते हैं context। ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में है कि नहीं, ये वाला जो चीज है भाई, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर तो से नाम का वेरिएबल है ही नहीं, तो पहले सर्च करेगा अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर।
अगर ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं सर्च करे तो कहाँ चले जाए? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, बोलो। ठीक है, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये लिखो, इसको बोलते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसको बोलते हैं ग्लोबल। पहले अपने फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में सर्च करेगा, नहीं मिला तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से प्रिंट करके दे देगा, वही ये बोल रहा है। ठीक है, तो फाइंड द वेरिएबल इन द आउटर एग्जीक्यूशन context, which is the global execution context, find the variable message. The way of the JavaScript resolve the problem variable by looking at the current scope. If it cannot find the variable, it goes up the outer scope, which is called the scope chain. अगर मान लो यहीं पे हमने बताया था, अगर यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे ये नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं मिलता तो क्या होता है? इससे आउटर स्कोप जाता है, इससे आउटर, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, अगर ये वाला वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलता तो कहाँ जाता है? यहाँ आ जाता है। अगर यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ जाता है, और यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ जाता है। इसी को बोलते हैं अपने आउटर स्कोप में जाता है, यहाँ चेक करता है, यहाँ नहीं मिला तो अपने आउटर स्कोप में यहाँ चेक करता है, यहाँ नहीं मिला, अपने आउटर स्कोप में जाता है, यहाँ नहीं मिलता। इस तरह से जहां पे मिलेगा, इस तरह से इसको एक चेन बना रहा है, इसी को बोलते हैं स्कोप चेन। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, स्कोप चेन। तो ये हो गया स्कोप चेन। तो इसमें देखो एग्जांपल में क्या बताया गया है, ग्लोबल, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो, जैसे ही एक मैसेज लिखे, जैसे भी एक प्रोग्राम लिखे, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। येलो कलर का जो है कंप्लीट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नथिंग बट ये जो विंडो है ना पूरा, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। विंडो में जो भी लिखा हुआ है ग्लोबल, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक विंडो को बुलाता है। ठीक है, और उस विंडो में देखता है कि पहला वाला बात बोलता है मैसेज इक्वल टू हाई सेट कर दो, मतलब एक मेमोरी बनाओ, उसमें मैसेज इक्वल टू हाई सेट कर दो। ये कंप्लीट हो गया, ये लाइन कंप्लीट होगा। पहले ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा, एक विंडो बुलाएगा, और विंडो के बाद फिर ये मैसेज क्रिएट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक, ये वाला लाइन तक सबको? अब जैसे ही फंक्शन क्रिएट किया, एक फंक्शन जैसे ही आया, इसको बोलते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही फंक्शन आया, एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, एक विंडो आया, ये पूरा विंडो है, ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का कलर है। ठीक है, अब देखो, ये इसमें एक आर्गुमेंट है, इसमें कोई भी आर्गुमेंट है, 0 आर्गुमेंट है। उसके अंदर गया, देखा विंडो, ठीक है, विंडो देखा, और विंडो के बाद यहाँ पे देखा कि एक मैसेज है, क्या है, क्या कहते हैं, console.log। तो console.log लेके यहाँ पे प्रिंट कराएगा। लेकिन क्या होगा, देखो अब ये जो यहाँ पे जैसे विंडो आया, यहाँ पे जैसे विंडो है, console.log मैसेज नाम का तो कुछ है ही नहीं। तो अब क्या करेगा, स्कोप चेन में जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर गया, इससे देखा कि मैसेज यहाँ है, इसीलिए यहाँ से बाहर गया, इसको बाहर देखा मैसेज यहाँ है, तो हाई प्रिंट कर देगा। समझे? इसी को बोलते हैं स्कोप चेन। मैसेज नीचे लिखता तो सर नीचे जाता वो। कहाँ पे मैसेज लिखता है नीचे, बताओ? लाइक ये जहाँ से फंक्शन का हमने खत्म किया, सी के ऊपर। सी के ऊपर अगर मैसेज लिखता तो हाँ, तो मतलब तो वो नीचे जाएगा। मतलब टॉप डाउन और बॉटम डाउन कुछ नहीं है, मतलब ऐसा टॉप से डाउन भी बॉटम ढूंढे डाउन लो। कुछ नहीं। ये तो हमने यहाँ डिक्लेयर किया, इसलिए यहाँ आया, वो तो हम यहाँ भी अच्छा। डिक्लेयर कर दें, यहाँ जहाँ डिक्लेयर कर दो, मतलब basically कोई भी डायरेक्शन में ढूंढता है वो, हाँ, दोनों क्योंकि डायरेक्शन में। ये तो ग्लोबल, अगर यहाँ भी लिखते हैं मैसेज तो बताओ ग्लोबल वेरिएबल होता है कि नहीं होता? ठीक है है सर। ना? ठीक है, सर तो मतलब इसका ये है, क्या हाँ बोलो, वो होस्टिंग में नहीं चला जाएगा फिर क्या बोले? तो जैसे कि मैसेज हाय, अगर वो console.log मैसेज के बाहर अगर प्रिंट कर देंगे नीचे, तो वो होस्टिंग में नहीं चला जाएगा? हाँ, होस्टिंग एक कंसेप्ट है बेसिकली, ऐसा कुछ तो नहीं कि होस्टिंग में चला जाए, एक कंसेप्ट है बच्चे मेरे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा, इसको मैं अभी इसको ये कर देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा लेट मैसेज इक्वल टू हाई। ठीक है, और यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, फंक्शन, और यहाँ लिखा से। ठीक है, और यहाँ लिखा .log और लिखा यहाँ पे मैसेज। ठीक है, और ये से फंक्शन को बुला लिया। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, कोई बात नहीं, हाई प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन अब तुम बोल रहे हो सर ये मैसेज को हम यहाँ दिखाएंगे। पहली बात तो ये होस्टिंग है ही नहीं। होस्टिंग कैसे होता है कि हम उसको यूज करें, ये फंक्शन डिक्लेयर कर लिए, अब इस फंक्शन को भी किया, जब यहाँ गया ले, जब ये इस लाइन पे है ना, अभी देखो क्या होगा इसमें, देखो ऐसे समझो, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन क्रिएट हुआ पहले, यस या नो, ये वाला डब्बा ग्लोबल एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, पहला वाला,
ठीक है। अब यहाँ 17 लाइन नंबर लाइन पे आया, देखा कि फंक्शन है, इसी के अंदर एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, सीधे ही एफ क्रिएट कर दिया। अब एफ क्रिएट किया, इसके अंदर देखा क्या कि प्रिंट करना है मैसेज को। अब देखा ये मैसेज तो है ही नहीं भाई यहाँ पे, तो कहाँ जाएगा, स्कोप चेन में जाएगा, इसके आउटर लूप में जाएगा। इसके आउटर लूप कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे बोलो या यहाँ पे बोलो, इससे कोई मतलब नहीं है। होल ऑफ द प्रोग्राम में आउटर लूप है, ये आउटर लूप है कि नहीं, आउटर ब्लॉक से लूप नहीं, आउटर ब्लॉक, इसका आउटर ब्लॉक है कि नहीं ये वाला, चाहे वो Yes, यहाँ sir. लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लिया मैसेज तो प्रिंट कर दिया, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ओके, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल लीक्स एंड वियर्ड पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ये छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा देख लो क्या होता है। सी द फॉलोइंग एग्जांपल, लीक्स एंड वियर्ड पार्ट कैसे होता है। गेट काउंटर इज इक्वल टू 10, रिटर्न 10 लिखा मैंने, इसको मैं समझाता हूँ ऐसे आप लोगों को। यहाँ जाते हैं कोड में और इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन लिखा गेट काउंटर। अब इस काउंटर में हमने वेरिएबल लिखा 10, रिटर्न काउंटर कंसोल डॉट गेट काउंटर, तो आउटपुट क्या आएगा? 10 आएगा सर। 10 10 आएगा। सर। ठीक है, 10 आएगा। सबको समझ में आ रहा है? एक काउंटर नाम का फंक्शन बुलाया है, उसके अंदर काउंटर में वैल्यू 10 दिए और रिटर्न काउंटर की, रिटर्न का मतलब नथिंग बट होता है कि इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। रिटर्न में क्या करा, गेट काउंटर कर दिया। लेकिन देखना इसका आगे जो लूप्स है, जो लूप होल है वो बताते हैं। तो देखो इसमें, इन दिस एग्जांपल वी असाइन द वैल्यू 10 to the counter variable without the where let const keyword and it is return it। ठीक है, मैंने क्या किया, बिना किसी टाइप का इसको क्या, बाय डिफॉल्ट where ही होता है, मतलब नथिंग होता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, outside the function we call the get counter function and store the result in the console। this issue is known as a leak of the variable, leak of the variable global variable। क्यों लीक बोलते हैं देखना अभी। under the hood JavaScript engine first look up the counter variable in the local scope of the get counter function। इन क्या होता है, local variable देखा इस काउंटर के फंक्शन के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं है। because of there is a no where let const keyword, counter variable is not available in the local scope, it has not been created, then the JavaScript engine follow the scope chain and look up the counter variable in the global scope। the global scope also does not have the counter variable, so JavaScript engine create the counter variable in the global scope। तो क्या होता है बेसिकली, इसको आप ऐसे समझो और बेटर तरीके से, मैंने यूज स्ट्रिक्ट कर लिया। इसका कहने का मतलब क्या, पहले ये समझो। कहने का मतलब ये है कि जब इसके अंदर फंक्शन स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे क्या कि कंसोल, पहले इसको समझो, ये कोड लिखा गया, यहाँ तक लिखा गया। जब यहाँ ये कोड कुछ करेगा क्या, अगर मैं इसको हटा दूं क्या होगा आउटपुट बताओ तो? कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट के ये कोड को लेके चेक कर लिया। मैंने बोला कि यहाँ जब लाइन नंबर 28 में आया तो बोला कंसोल डॉट लॉग, यहाँ तक देखा गेट काउंटर फंक्शन को बुलाया है। जब गेट काउंटर फंक्शन कहाँ, यहाँ है, हम यहाँ आ गए, यहाँ चेक के गेट काउंटर फंक्शन आ गया, यहाँ पे बोला काउंटर इक्वल टू Z10 है। अब काउंटर इक्वल टू 10 है ना, तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट किया ना, तो ये थोड़ा सा लीक है। इसका ये मतलब होता है इसमें कोई टाइप नहीं, जबकि इसको क्या बोलेंगे, इसको लोकल वेरिएबल बोलेंगे नहीं बोलेंगे बताओ? हाँ जी सर। लोकल स्कोप या सर, लोकल local। वेरिएबल बोलेंगे, लेकिन इसका Yes, कोई टाइप नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको ग्लोबल वेरिएबल बना देगा। इसको क्या बना देगा, ग्लोबल वेरिएबल बना देगा। और उसके बाद रिटर्न काउंटर करेंगे तो इसकी जो है वैल्यू जो है 10 प्रिंट कर देगा। 10 क्यों प्रिंट किया, इसके रिटर्न में वैल्यू 10 प्रिंट कर दिया। अगर ये मैं यहाँ पे लगा दूं लेट, ठीक है, अब बताओ क्या आउटपुट होगा। लेट हाँ लेट। तो बेसिकली इसको बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट जो है ग्लोबल क्यों कर रहा है, क्योंकि रिटर्न है। तो इसको थोड़ा और समझते हैं इस तरह से, तब जाके समझ में आएगा। थोड़ा सा इश्यूज है, यूज स्ट्रिक्ट बोलते हैं। यूज स्ट्रिक्ट काम करता है इसमें क्या, मेरे हिसाब से इसमें काम नहीं करेगा। ये एडवांस मतलब इन द सेंस कि अब यूज नहीं होता इस टॉपिक का, इसका यहाँ पे देखते हैं, करते हैं, होता है क्या यूज हो रहा है ना। तो ये काम नहीं कर रहा है, मतलब ये लेटेस्ट टॉपिक नहीं है। पुराने जावास्क्रिप्ट में इसका इस्तेमाल होता था थोड़ा बहुत लीक का, अब इसका जरूरत नहीं है। इसको कुछ खास नहीं, इसको स्किप करते हैं, इस लीक को, कोई इशू नहीं है। तो यूज स्ट्रिक्ट करने का मतलब ये होता है कि इसको सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल करना है, बाहर इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, इसके अंदर लिख दूं अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट, और इसको हटा देता हूँ, तो
क्या होता है अभी हो रहा है, वही बोला यूज स्टिक काम करता ही नहीं जावास्क्रिप्ट, लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में काम नहीं, पुराना वर्जन में जावास्क्रिप्ट में काम करता था यूज स्टिक, अभी जरूरत नहीं, इसको स्किप करते हैं हम। ठीक है, ब्लॉक स्कोप मैंने बता रखा है आप लोगों को, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ आप ही लोग। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+A और इसको बंद करते हैं, और इसको एक फंक्शन लिखते हैं क्विकली। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है से, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, सब लोग बताना, पार्टिसिपेट करना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है स्टॉप करके पूछ लेना। ठीक है, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सर स्ट्रिक्ट हम होस्टिंग को रोकने के लिए नहीं करते हैं? हाँ, वही होस्टिंग को रोकने के लिए करते हैं, मैं और भी इसको देख के बताऊंगा अभी। ठीक है सर पिछले वाले में शायद आप क्या कहते हैं फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इस वजह से शायद आ रहा है। वेरिएबल कॉल तो आप नहीं कर रहे हैं ना, फंक्शन कॉल कर रहे हैं। हाँ, फंक्शन कॉल वैसे मैं दिखा सकते हैं, मैं इसको कॉन्फिडेंस नहीं इसलिए मैं इसको स्टॉप किया हूँ। चलो देखो, ये तुम जो बोल रहे हो ना वही होगा, कोई इशू नहीं। देखो क्या होना कि अगर मैं यूज स्ट्रिक किया ना यहाँ पे, और इसको मैं अगर अभी यहाँ पे क्या करूँ, इसको भी हटा देता, इसको यहाँ पे console.log काउंटर करके देखिए सर। यहाँ पे मैं अगर काम करेगा वैसे तो दोनों। तो ये काउंटर वेरिएबल कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया कुछ भी। अब इसको रन कराता हूँ, ये सर अब तो करें। तो एक एरर बताएगा, लेकिन अगर मैं ये यूज स्ट्रिक हटा दूं, अब मैं आउटपुट रन कराऊं, देखना आउटपुट आएगा, काउंटर इज नॉट डिफाइंड। सर रिटर्न काउंटर हटाइए। फिर वो वेरिएबल के अंदर है, वो फंक्शन के अंदर है ना, कैसे आएगा? ये सर अब तो नहीं, यही तो बोल रहा है आना ना कि चाहिए। लीक है, अगर मैंने इसमें वेरिएबल डेटा टाइप नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इसको ग्लोबल बना देता है, वही करना चाह रहा था मैं। सर तो मतलब यहाँ पे काउंटर इज इक्वल्स टू 10, वो उस लाइन पे मतलब लोकल स्कोप में वो नहीं रीड कर रहा है ना, उसको ग्लोबल बना दे रहा है, तो रिटर्न लगाने का क्या ही फायदा हुआ अगर ये बना रहा है, और प्रिंट क्यों ठीक कराएगा है, इस- इसलिए मैं रिटर्न तो तब यूज करते हैं ना जब कोई फंक्शन को कॉल, मतलब फंक्शन की वैल्यू को गेट किसी करना को भी हो। कर सकते हैं, किसी वैल्यू को, Return किसी किस- पॉइंट को, किसी भी फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं। हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, काउंटर वेरिएबल का रिटर्न कर रहे हैं, काउंटर वेरिएबल में क्या है उसको रिटर्न कर रहे हैं, हम कुछ फिर भी सर, रिटर्न कर सकते ये हैं। सर उसको रिटर्न करने के लिए वहाँ गेट काउंटर आएगा ना, हाँ, उसको उसको उसकी वैल्यू, वो तो उसकी ठीक है, वैल्यू वो गेट तो मैं करने दोनों कर के रहा लिए। हूँ, दोनों उसमें कुछ इशू नहीं, समझ में मुझे क्लियरिटी नहीं आ रही है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा था कि बाद में देख लेंगे इसको, बाद में हम देख के कल बताएंगे इसको। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देख रहे थे, इसको देखते हैं, ये वाला छोटा सा ब्लॉक, इसको पढ़ लेते हैं। बताओ इसका आउटपुट क्या है। सर एक बार ही समझाओ ना थोड़ा सा। ठीक है, कोई समझा सकता है इसको जो पहले से समझ सका, थोड़ा सा अपना अपना इनिशिएट ले सकता है समझाने के लिए, मैं समझा ही दूंगा। यस सर, हाँ बोलो। एक फंक्शन बनाया मैसेज का, हाँ, और कंडीशन लगाई कि अगर मैसेज नहीं मैसेज का है, नहीं, से नाम से का का function। बनाया। हाँ सॉरी, से का बनाया, उसमें मैसेज लिखा है उस, अगर ये फिर कंडीशन लगाई है कि अगर मैसेज नहीं है, नॉट मैसेज, तो लेट ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो, और उसको उसको प्रिंट कर दिया सर कंसोल लॉग करके, और फंक्शन को कॉल कर दिया। सर मेरे हिसाब से ये जो 40 नंबर है, से के अंदर जो है वहीं पे हम मैसेज लिखेंगे कुछ, क्या हाँ हाँ हाँ, है ना, बताएंगे। क्योंकि वो पैरामीटर पास किया उसने मैसेज का, और उसने बोला अगर कोई मैसेज नहीं दिया हुआ है ठीक है, तो पहले तब अंदर पढ़ते को हैं। जाएंगे। ES6 मतलब 2015 में प्रोवाइड द लेट एंड काउंट कीवर्ड, 2015 में ही ना लेट एंड काउंट कीवर्ड आया था, दैट अलाउ यू टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन ब्लॉक स्कोप। उसी वही लोग बताया आप लोगों को ब्लॉक स्कोप होता है, पहले ब्लॉक स्कोप नहीं था, पहले सिर्फ वेयर था, सबका ग्लोबल स्कोप था। Generally, whenever you see the curly bracket is called the block scope. It can be area within the if else switch condition for do while loop. See the following. तो ये ब्लॉक स्कोप बेसिकली स्विच और फॉर लूप के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक से नाम का फंक्शन बनाया जिसमें एक मैसेज नाम का वेरिएबल पास किया, मैसेज पास नहीं किया, मैसेज नाम का वेरिएबल है। ये बताओ मैसेज है या मैसेज नाम का वेरिएबल है, बोलो कैसे समझे वेरिएबल है, क्योंकि डबल कोट में नहीं है, अगर स्ट्रिंग रहता तो मैसेज होता है। अब ये बोल रहा है कि इफ मैसेज इज नॉट, अगर मैसेज नहीं है मतलब मैसेज एम्प्टी है, यस या नो, नॉट है ना, नॉट लगा हुआ हाँ जी ना, सर। तो नॉट है, तो क्या बोलो, ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो कर दो और console.log ग्रीटिंग को प्रिंट कर दो। अगर ये मान लो मैसेज रहता कुछ भी तो ये वाला प्रिंट कर दो, यही बोल रहा है। इन दिस एग्जांपल विद द रेफरेंस वेरिएबल ग्रीटिंग आउटसाइड इफ द ब्लॉक इज रिजल्ट इज एरर। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसको रन कराता हूँ, समझता हूँ इसमें क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है भाई सर, देखो अभी तो मैसेज नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं पहली बात, लेकिन मैसेज इज नॉट, मैसेज कुछ भी नहीं है, मैसेज कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लेट ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो बोल दिया और हेलो में कंसोल डॉट प्रिंट किया। लेकिन ये यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे भी प्रिंट करा रहा है ग्रीटिंग,
यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये ग्रीटिंग वेरिएबल बुला रहा है, ग्रीटिंग वेरिएबल आएगा, बताओ तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये Define ग्रीटिंग नहीं इस किया। ब्लॉक के अंदर है, ये ग्रीटिंग जो है इस ब्लॉक के अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर, इसका स्कोप जो है ना यहीं तक है। देखो ये लेट ब्लॉक, भी है सर, वर्ड से भी समझ सकते हैं हम। हाँ ठीक है, लेट भी है, तो ग्रीटिंग जो लेट का स्कोप है ना यहीं तक है, लेट का स्कोप ब्लॉक स्कोप होता है, तो ब्लॉक के अंदर है, इसीलिए ये रेफरेंस एरर देगा, बोलेगा ग्रीटिंग नाम का तो कोई है ही नहीं, बोला ग्रीटिंग इज नॉट डिफाइंड, जबकि यहाँ डिफाइंड है, लेकिन वो ब्लॉक के अंदर है, इसी ब्लॉक के अंदर है, इससे बाहर। समझ में आ रहा है सबको एरर क्यों बता रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, यस इसको सर, इसी जो को हम लोकल लोग में है। क्या बोले, बोलो। सर वो कह रहे हैं क्योंकि लोकल में है। हाँ, इसी को अगर तुम वेयर कर दो बाय चांस तो काम कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका स्कोप जो होता है, वेयर का स्कोप होता है फंक्शन लेवल, ब्लॉक लेवल नहीं होता, तो काम कर जाएगा यहाँ भी हेलो hello हेलो। लेकिन लेट में कॉन्स्ट में नहीं करेगा, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट जो है क्या होता है, ब्लॉक लेवल होता है, लेकिन Block कॉन्स्ट scope। क्या होता है, ब्लॉक लेवल होता है, इसलिए वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइव असाइनमेंट करते हैं, समझते हैं, ये वाला कोड को समझते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। इसको रन कराते हैं, धीरे धीरे आप लोग फंक्शन भी ऐसे फंक्शन का क्लास कराएंगे, डोंट वरी, अभी तो ऐसे सिर्फ देख रहे हो आप फंक्शन, लेकिन फंक्शन का क्लास होगा। अब बताओ इसका आउटपुट क्या है, कोई बता सकता है? जिसको नहीं समझ में आ रहा ना प्लीज स्टॉप करके पूछना, बस सुनना मत, ठीक है? सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, डिस्कस मतलब लाइन बाय लाइन समझने से फायदा होगा। अनडिफाइंड। सर इनसाइड आएगा। इनसाइड आएगा। इनसाइड को समझ में आ रहा है ऋषिकेश, इनसाइड आएगा सर। रोहित, यस शाश्वत, सर। शाश्वत समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं सतीश, आ रहा सर। कौन शाश्वत, कौन बोला नहीं आ रहा है? शिवम शिवम शिवम। शिवम, ठीक है, ठीक है, नहीं आ रहा है, ऐसे हम समझाएंगे ही, डोंट वरी। ठीक है, साइना, सतीश, नेटवर्क इशू था सर, रीना, से ज्वाइन किया हूँ। रीना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कृष्णा, कृष्णा आनंद, ठीक है। अब देखो फिर से समझाते हैं, प्लीज समझना, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल टेक्स्ट नाम का क्रिएट होगा, एक वेरिएबल टेक्स्ट नाम का क्रिएट हुआ, इसमें आउटसाइड प्रिंट कर देगा, टेक्स्ट नाम का क्रिएट हुआ, यह आउटसाइड प्रिंट कर देगा, ठीक, आउटसाइड जो भी यहाँ पे आउटसाइड प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया पहला लाइन। उसके बाद एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन लॉग इट, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट किया है, वेयर टेक्स्ट को इनसाइड किया, ये फंक्शन बन गया, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन बुलाया लॉग इट को, इसको बोलते हैं कॉल करते हैं, फंक्शन कॉलिंग हुआ, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग हुआ, जब ये कॉलिंग हुआ तो देखेगा कि लॉग इट कहाँ है भाई, तो बोलेगा लॉग इट यहाँ है। तो जैसे इसके अंदर फंक्शन के गया, बोला कि कंसोल डॉट टेक्स्ट करो, कंसोल डॉट टेक्स्ट करो, तो फाइंड करेगा टेक्स्ट कहाँ है, तो पहले अपने ब्लॉक के अंदर फाइंड करेगा, अपने अंदर टेक्स्ट कहीं पे है क्या, हाँ है, तो इनसाइड रखेगा। अगर अपने अंदर नहीं होता तब उस देखते हैं, तो अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है। अनडिफाइंड आएगा सर। तो इसके डिफाइन अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि अपने अंदर तो देखा, लेकिन ये क्या है, ये होस्टिंग है, बाय डिफॉल्ट होस्टिंग का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट होस्टिंग का वैल्यू क्या आता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आता है, इसलिए आंसर अनडिफाइंड है। अब दोनों सबको समझ में आया? यस सर सर। पर वो लोग बाहर नहीं- वाला आउटसाइड में ले सकता था ना। यस, अच्छा, अगर मान लो बाय चांस ये वाला चीज नहीं रहता, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड आता है सर। अब आउटसाइड आता है, समझ में आ रहा है, होस्टिंग का भी कंसेप्ट, ब्लॉक का भी कंसेप्ट, और लोकल ब्लॉक का भी कंसेप्ट समझ में आ रहा है। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से बता देते हैं। इसका आउटपुट अनडिफाइंड कैसे आया, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है? सर वेरिएबल टाइप बदलता तो कुछ और आता ना, क्या बोले? वेरिएबल टाइप वर्क की जगह कुछ और होता। एरर हो जाता फिर। हाँ फिर Reference वो error अगर इनिशियलाइज वाला आता। अगर मैं लेट दे Reference देता, error होता है। होस्टिंग तो होता है, लेकिन लेकिन लेट reference लेट error। टाइप का जो है बाय डिफॉल्ट कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करता, इसलिए वो एरर देता। इनिशियलाइज वाला देता। इनिशियलाइजेशन बिफोर द इनिशियलाइजेशन, हम लोग यूज में इनिशियलाइज नहीं, अगर दूसरा टाइप देते तो। समझ में आया? यस नहीं बोलना, हाँ ना ये बोलो। यस सर, आ गया। सर अच्छा, अगर ये लाइन नंबर ये जो 42 है उसको 44 की जगह लिखते हैं एक बारी, तो क्या आता? क्या बोले? ये टेक्स्ट को, ये कंसोल डॉट लॉग से पहले टेक्स्ट अगर लिखते हैं,
तब तो यहाँ आउटसाइड आ जाता। यहाँ बोलते हैं। हाँ नहीं, जैसे था ना अभी ऐसे ही है ना, ठीक है सर। ये लाइन नंबर 42 को कॉपी करके अंदर डाल दो सर एक बार। लाइन नंबर 2 को 42 के अंदर। हाँ हाँ, ये लाइन नंबर 47 पे 46 के बाद, मतलब कंसोल डॉट लॉग को सेंटर में। हाँ हाँ अरे हाँ हाँ, हाँ, अब क्या अरे भाई ये इसमें क्या इसको दिक्कत है? वेर। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। वेयर कीवर्ड क्या होता है? रीडिफाइन रीडिक्लेयर कर देते हैं। इनसाइड अभी जैसे यहाँ पे पहला Inside लाइन आएगा। आएगा तो क्या प्रिंट करेगा? बताओ तो मुझे, साइड। इनसाइड। इनसाइड। बताओ सब लोग, बताओ सब लोग गेस करो। इनसाइड होगा या लग रहा आउटसाइड? आउटसाइड, मेरे को आउटसाइड लग रहा है तुम्हें सर। आउटसाइड लग रहा है, कोई बात नहीं है। और सबको बोलो, दूसरे लोग बोलो, फिर एक्सप्लेन करेंगे। इनसाइड होगा सर। आउटसाइड Inside सर अनडिफाइंड भी इनसाइड। अनडिफाइंड भी हो सकता दूसरा है और अनडिफाइंड हो unsigned भी जाएगा हाँ। क्योंकि वो एक बॉक्स hosting बनाया, में। होस्टिंग में आ बॉक्स बनाया, जाएगा। दूसरा लाइन नंबर unsigned। 45 में बॉक्स बनाया, इसमें अंदर लिख दिया इनसाइड। ठीक है, अब लाइन नंबर 46 में जाएगा। अच्छा, लाइन नंबर 47 यूज ही में नहीं जाएगा किया सर तो ये 46 अनडिफाइंड 55 ही काम करेगा ना। नहीं, 46 क्या inside करेगा? आएगा। होस्टिंग थोड़े हो रहा है। सर। समझ आई में गेस आ रहा है? आई गेस अनडिफाइंड भी हो सकता है क्योंकि सर होस्टिंग भी हो तो हुई है। होस्टिंग दूसरी अब दोनों एक साथ नहीं होस्टिंग के होगा। पहले अब ऑपरेशन हुआ है ना वो। तो अब देखो, दो काम एक साथ। होस्टिंग कब कहते हैं? होस्टिंग जब कहते हैं उस वेरिएबल को आप तब यूज कर रहे हो बिना डिफाइन किए। हम तो अच्छा पहले पहले डिफाइन किया अच्छा हुआ वो है ना। पहले डिफाइंड है इसलिए ये वो तो इनसाइड होस्टिंग दिखा यहाँ पे देगा। हो ही नहीं रहा है। ओके सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो इंटर करते हैं, इनसाइड हो गया। एक इंटरेस्टिंग समझ में आ गया ना? एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं यस और। सर। यस सर। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, ये हम नहीं बताए थे। अभी तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्या होगा आउटपुट? बोलो। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आएगा। साहिल बताएगा। Undefined। साहिल क्या आएगा आउटपुट? साहिल क्या आएगा आउटपुट? पूजा क्या आएगा आउटपुट? अनडिफाइंड आएगा सर। वेरी गुड। अब बताओ आउटपुट क्या है? अगर कोई बता देगा तो फिर समझेंगे। तो सर वो इनिशियलाइज्ड है ना? तो आउटसाइड आएगा सर, 45 को आपने यूज ही नहीं outside किया। सर क्या? आउटसाइड आएगा। नहीं यार, नहीं सर, अब इनसाइड वो आएगा। इनसाइड ही आएगा क्योंकि वो Inside global आएगा। पहली बात बताओ कि यहाँ पे जब वेयर लगा हुआ तो अनडिफाइंड है। सब लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे हाँ। वेयर लगा तो अनडिफाइंड, क्योंकि होस्टिंग हो रहा है और बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन अनडिफाइंड होता है, इसलिए आ गया ये। बाय guess- डिफॉल्ट भी तो वेरी होता है ना सर फिर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सब लोगों को समझ में आया कि अनडिफाइंड। अब मैं वेयर हटा दिया, अब आउटपुट क्या आएगा? और मैंने आउटसाइड दिखाया, आएगा। आउटसाइड। आपको दिखाना नहीं था यार। इनसाइड सर। चलो ठीक है, आप समझते हैं इसको। देखो क्या होता है कि तुम बोलोगे सर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के टेक्स्ट किए और टेक्स्ट तो यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन हम इसको अगर ऐसे देखो तो सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी इसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे होस्टिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे होस्टिंग नहीं हो रहा है तो देखेगा टेक्स्ट नाम का वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर है। तो टेक्स्ट नाम का वेरिएबल देखेगा तो आउटसाइड स्पोर्ट चले जाएगा। अपने अपने अंदर कहाँ देखेगा नहीं है तो यहाँ चले जाएगा, क्योंकि ये वेयर टाइप नहीं है। ये वेयर टाइप नहीं। हमने 4 टाइप का, आपने याद करोगे जब वेरिएबल वाला स्लाइड देखोगे हम लोग 4 टाइप पढ़े। एक पढ़े वेयर, लेट, कॉन्स्ट, एक का नथिंग। तो नथिंग में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है कि आउटपुट सर इनसाइड होना चाहिए। नहीं, आउटपुट आउटसाइड होगा, क्योंकि ये लाइन पे खोजेगा कहाँ है। तो इसको नहीं पढ़ेगा, पहले इसको पढ़ेगा। समझे? क्यों इसको पहले पढ़ेगा ये भी रीजन बता देता हूं आप लोगों को। देखो ऐसे अगर मैं देखूं यहाँ से, तो टेक्स्ट नाम का एक बॉक्स बनाया, टेक्स्ट नाम का एक बॉक्स बनाया इस लाइन के लिए। ठीक है, टेक्स्ट नाम का एक बॉक्स बनाया और यहाँ पे आउटसाइड आ गया। अब इसके अंदर जब ये फंक्शन क्रिएट हुआ, ये बन गया, ये फंक्शन जब कॉल हुआ तो यहाँ पे है। तो ये फंक्शन किसको बुलाएगा? ये फंक्शन किसको बुलाएगा? इस फंक्शन इसी टेक्स्ट को बुलाएगा। फिर बोलोगे सर होस्टिंग क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? यहाँ पे होस्टिंग क्यों नहीं हुआ कि होस्टिंग जब होता है ना वो तीन ही के साथ होता है, वेयर, लेट, कॉन्स्ट। Let const। तो यहाँ पे जब ये लाइन क्रिएट हो गया तब उसके बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे इनसाइड हुआ। तो देखो अभी अगर मैं इसको अभी मैं क्या करूं, इसको हटा देता हूं और यहाँ पे एक चीज लिखता हूं, कॉन्स्ट। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? इनसाइड। इनसाइड। इनसाइड आएगा। 2 कंसोल लिखा, 2 Outside, option है। inside। सर पहले outside, inside। आउटसाइड, इनसाइड। पहले Outside आउटसाइड and इनसाइड। inside। अच्छा, अब अगर मैं वेयर लिख दूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? अनडिफाइंड। इनसाइड अनडिफाइंड सेकंड Undefined। इनसाइड। अनडिफाइंड इनसाइड। अनडिफाइंड और इनसाइड। अनडिफाइंड आएगा इनसाइड आएगा। हाँ, तो ये वेयर कीवर्ड का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ज्यादा ये सब टेक्निकली इंटरव्यू के टाइम में काम आता है। ऐसे मतलब इतना ज्यादा जरूरत नहीं है मार्केट में, तुम कुछ भी लेट लगा के कुछ भी करके काम कर लोगे, इशू नहीं है। लेकिन इंटरव्यू के काम इतना करेक्ट थोड़ा सा डीप जानने की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो? काम करने लायक आप लोग सीख चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, लेकिन टेक्निकली ये सब भी जरूरी है। ठीक है, तो एक छोटा सा और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब चलो इसका बताओ आउटपुट क्या होगा, क्विकली बताओ। एरर आएगा, क्या आएगा एरर आ- बताओ। मतलब इसको टाइप ऑफ, मतलब ए मतलब टाइप ऑफ ये करना है, प्रिंट करना है ना उन्होंने, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? मतलब ऐसे तो उसको हम कंसोल में करेंगे, ये सब कंसोल, कंसोल में करेंगे पहले। हाँ कंसोल डॉट लॉग। बी का नंबर आएगा, ए का अनडिफाइंड आएगा, ऐसा कुछ। तो का नंबर आएगा, नंबर आएगा सर। सिर्फ बी का नंबर आएगा। आउटपुट क्या आएगा? तो देखो इस फंक्शन को समझे, एक फंक्शन लिखा गया है, उसके अंदर लेट ए एंड बी इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब ए के अंदर भी 0, बी के अंदर भी 0। ये तो लाइन समझ में आ रहा है ना? अब ए प्लस प्लस किया, तो ए प्लस प्लस किया तो क्या होगा? रिटर्न ए, और आउटपुट क्या आएगा बताओ? तो टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ बी का आउटपुट क्या आएगा बताओ? सर ए का 1 आएगा, बी का 0 आएगा। और ए का अनडिफाइंड आएगा, बी का नंबर। क्यों? क्योंकि हमने बताया था आप लोगों को, एक बार ऋतिक पूछा था सर मल्टीपल लाइन में इनिशियलाइज करेंगे तो क्या होगा? मल्टीपल लाइन इनिशियलाइज करेंगे तो ये वाला सिर्फ जो है डिक्लेयर हुआ है इसके, लेकिन इनिशियलाइज जो है सिर्फ लास्ट वाले पे होता है। अगर मैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दूं तो लास्ट वाले पे सिर्फ इनिशियलाइज होता है और सब पे नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता था, पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा मैं अभी सिर्फ कंसोल डॉट ए करूं, सॉरी कंसोल ए तो यहाँ नहीं होगा प्रिंट, होगा क्या? रिटर्न क्या? रिटर्न ए कर रहा, हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, ठीक है, अब बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी? ए की 0, ए की अनडिफाइंड, बी की 0। पहली बात तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? बी को ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड ए को? ए अच्छा ए की वैल्यू तो डिफाइन है नहीं, डिफाइन जिसका नहीं उसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, है ना? जिसकी वैल्यू डिफाइन है उसको इंक्रीमेंट करें तो कहां से होगा बोलो? नहीं है ना? होगा। तो बी कर दूं यहाँ पे, और अगर यहाँ बी करके बी रिटर्न कर देता हूँ, अब बताओ क्या आएगा? ठीक है, ए को अभी प्रिंट नहीं करना, आएगा, ए को तो डिफाइन रहेगा, 1 है ना? सर फिर भी ब्लॉक स्कोप है ना, तो कहाँ से आएगा? अच्छा लेट लेट है ना? Yes, अच्छा sir. लेट है, चलो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ, है ना? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया, और उसके बाद ये कुछ हम लोग सीखे आज, ये आप लोग देखना करके, ये असाइनमेंट्स है, इसको करके देखना प्लीज, इसको फॉलो, इसको छोड़ना मत एक भी असाइनमेंट को, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, आगे दिक्कत होगा। प्लीज ट्राई टू डू ऑल द असाइनमेंट्स हियर, एनीथिंग इज देयर, एनीथिंग का डाउट है तो कुछ कंप्लीट करो। आप लोग सीएसएस कंप्लीट, अच्छा सीएसएस का 5 डिजाइन आप लोग का हो गया? अभी नहीं सर, अभी नहीं सर। अभी नहीं हुआ है सर पूरा। सीएसएस का 5 डिजाइन हो गया, तो हो सकता है कि फ्राइडे को आप लोगों के लिए या तो सीएसएस का फुल टेस्ट रखेंगे क्योंकि मैं छुट्टी पर रहूंगा, फ्राइडे को फुल टेस्ट, या फिर फ्राइडे को एक नया डिजाइन देंगे, आपको विद इन 2 आवर में कंप्लीट करना वो डिजाइन। वो टाइमिंग लिमिट होगा, मतलब 7 से 9 स्टार्ट करेंगे, वो टाइम लिमिट क्लास के बदले में वो टाइम लिमिट में देखते हैं कितने लोग कंप्लीट कर पाते हो। ठीक है, एक छोटा सा डिजाइन देंगे, उसको टाइम लिमिट में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये रहेगा, इसलिए कोशिश करो कि जावास्क्रिप्ट में आधा घंटा 1 घंटा दो ही दो, उसके बाद कोशिश करो कि आप सीएसएस को इस वीक में वाइंड अप करेंगे हम, ताकि जावास्क्रिप्ट का बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे, क्लिक इवेंट, बटन, मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो जाना चाहिए। अभी ये सब इवेंट नहीं बनाए ना हम लोग, पूरा जो हम फंक्शनलिटीज नहीं बनाए ना, अभी क्या क्या डिजाइन किए और स्ट्रक्चर बनाए, तो कोशिश करो जल्दी से डिजाइन खत्म होने का, तो हम लोग फिर स्ट्रक्चर पे जाएंगे, मतलब सॉरी फंक्शनलिटीज बनाएंगे, हर चीजों पे फंक्शनलिटीज बनाएंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल बताया था, कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे, और स्टॉप वॉच कैसे बनाएंगे, या फिर क्या कहते हैं डिजाइन कैसे बनाएंगे, और उस पर बटन पे क्लिक करेंगे क्या होगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे क्या होगा, प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे क्या होगा, है ना? एक पेज पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज कैसे खुलेगा और डिफरेंट डिजाइन में खुलना है, ये सब चीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो सीएसएस को एस टू एन एस कंप्लीट करने के लिए, और टाइम शीट जो लोग नहीं भर रहे हैं, इट्स नॉट गुड आइडिया टू, एटलीस्ट आप 2 घंटा ही क्यों नहीं कर रहे हो, आप भरो टाइम शीट, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम शीट भरना, वो एक हैबिट बनाता है आपका। ठीक है, ठीक है, कुछ डाउट है तो 1-2 डाउट हम ले सकते हैं, जनरल डाउट बताओ। सर आपने कोड रनर इंस्टॉल कराने को कहा था ना, क्या चीज के लिए इंस्टॉल कराते हैं?
कोड रनर एक्सटेंशन VS कोड में, कौन सा? कोड रनर। हाँ कोड रन बताओ। हाँ एक मिनट बोलो। कोड रनर आप खोलिए, जो पहला वाला होगा वही वाला। हाँ एक मिनट, स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा मेरा। यस सर, यस सर, यहीं पे सर्च अब जो लोग को जाना जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे ये एक मिनट, जिसको जाना जा सकता है इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो कोड रन, COD कोड रनर, यस पहला सर, वाला। ये पहला वाला। यस ये क्या है कि बेसिकली C++ बेसिक फीचर्स। बेसिक एक बटन आ जाता है सर ऊपर टॉप में, हाँ वही जहाँ पे फाइल्स ओपन हो रही हैं, नहीं मतलब जहाँ स्क्रिप्ट ऑफ .js उसी में एकदम राइट में बेसिकली रन करा देते हैं सिंगल क्लिक में। अच्छा, एक बटन बन जाता है इसमें। चलो Yes, sir. ठीक है, ये सारा कुछ रन कोड रन करता है इसको, ठीक है। रन द कोड ऑन दिस, इतना कोड रन स्टेप बाय स्टेप। हो गया इंस्टॉल। हो गया तो इंस्टॉल। देखिए आगे बोलिए। ये वाला ये नहीं सर, और राइट में आइए ऊपर सर, ऊपर ऊपर राइट कॉर्नर। टैब में सर। यस सर, यस सर, उसके बगल राइट। यस सर, रन द कोड। अच्छा ये रन कोड आ गया, तो हमें डायरेक्ट रन का हो जाएगा यहाँ पे ना। यस सर। अच्छा एक चीज और दिखा, नया चीज दिखा रहा है, मस्त है ये। टाइम कितना लगा इसमें ये भी दिखा रहा है, यस सर, टाइम भी बताओ। ठीक है। तो बहुत अच्छा चीज है ये। यस सर। तो इसमें अगर मैं इसको मैं हटा देता हूँ, इसको रन कराता हूँ और उठाए, हाँ सही है। मतलब उससे नहीं करने के बाद यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा, और टाइम भी दिखा रहा है, कोड.0, Yes, sir. ठीक है, अच्छा चीज है। एल्गोरिदम में ज्यादा कम आएगा। हाँ एल्गोरिथम में थोड़ा सा काम आएगा, टाइम देखेंगे तो आप लोग Yes. करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग यही वाला वीक आपके पास टाइम है। नेक्स्ट वीक से आप लोग को डेली DSA प्रॉब्लम भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वो भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को टाइम डे बाय डे आपका एक्टिव बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा टाइम, ऐसा नहीं घटेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अब हैबिट बना लो और स्टार्ट करो सब कुछ। आज से आप लोग का टेस्ट जो है 2 टेस्ट है, 2 टेस्ट लिखना। चलो सर एक चीज और कि हाँ, बोलो। जो आगे की वो PDF फाइल्स हैं वो उस पे पोर्टल पे वो ओपन करवा दीजिएगा। अच्छा हाँ मतलब करा scope देंगे, तक ही। अभी अभी करा देंगे, आज ही करा देंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक आज का तो एक्सेस था ना कि नहीं है आज का? यू। स्कोप वाला कर सर, चुका हूँ आज सर का आज का। अच्छा ठीक है, मैं आज ही अभी कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है, बाय, ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।